Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 8 दिसंबर के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कुछ रिवीजन क्वेश्चन से। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे स्वयं शिक्षा प्रयोग। ये आपका एक एनजीओ है जो कि महाराष्ट्र बेस्ड एनजीओ रहेगा। इस एनजीओ में रिलेटेड जो आपका इंफॉर्मेशन रहती है वो क्या रहती है कि ये आपकी जो वीमेंस है ना, उनको क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग मेथड्स में ट्रेन किया जाता है। आई रिपीट, वीमेंस को यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग मेथड्स में ट्रेन किया जाता है इस एनजीओ में, जो कि है स्वयं शिक्षण प्रयोग। और अभी जो न्यूज़ में ये क्यों रहा, क्योंकि इनको लोकल अडेप्टेशन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित करा गया है। सेकंड आ जाते हैं। सेकंड हम बात करेंगे गॉब्लिन मोड। गॉब्लिन मोड ये आपका वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा। आई रिपीट, ऑनलाइन वोटिंग हुई थी इस वर्ड के लिए और गॉब्लिन मोड इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट, वीना नैर। वीना नैर को ने ये एक इंडियन ओरिजिन टीचर है, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाती हैं। ठीक, इनको 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ऑस्ट्रेलिया में टीचिंग का इनको एक्सपीरियंस है, इन तीन कंट्री में। और इवन ये जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे आपका मोबाइल या लैपटॉप, आपके कंप्यूटर्स प्रोवाइड कराती हैं ताकि उनको एजुकेशन, उनकी स्किलिंग में कोई हैम्परिंग ना हो सके। और इसी वर्क के लिए कि जो वो इतना अच्छा काम करती हैं कि बच्चों को पढ़ाती हैं और साइंस फील्ड में आगे लेके जाती हैं, इसीलिए उनको प्राइम मिनिस्टर प्राइज़ फॉर एक्सीलेंस से अभी 2022 के सम्मानित करा गया है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डिजिटल पेमेंट्स की। हम जानते हैं डिजिटल पेमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है इंडिया में थ्रू यूपीआई और ऑनलाइन वॉलेट्स की मदद से। तो अभी रिसेंटली जो डिजिटल पेमेंट्स आई हैं फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022, जो कि है जुलाई से सितंबर मंथ के लिए, वो है 38.32 ट्रिलियन रुपीस की। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? वर्ल्ड लाइन के द्वारा इस डाटा को रिलीज़ किया गया है। और इवन अगर आपको याद रखना हो तो याद रखेंगे कि वर्ल्ड लाइन और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, इन दोनों के द्वारा मिलके, अगर आपको याद हो, एक एमओयू भी साइन किया गया था, पार्टनरशिप की गई थी, जहां पर हम यूपीआई को यूरोप में स्टार्ट करेंगे, जहां पर
यूपीआई की ट्रांजैक्शन को, ताकि लोग, इंडिया के लोग यूपीआई को यूज़ कर सकें इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे यूरोप से स्टार्टिंग की जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कराई गई फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग, कि हम सॉइल हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने सॉइल की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें हम केमिकल्स ना यूज़ कर सके और डायरेक्टली हम सॉइल की हेल्थ को ग्रो कर सके। इसीलिए अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। किन्होंने ऑर्गेनाइज कराई थी, किनके द्वारा इनॉग्रेट करी गई थी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग? वो रहेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। फिर आ जाते हैं EPFO डाटा पॉइंट टू 35% राइज, मतलब आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ना वो कम होता जा रहा है, और जो फॉर्मल जॉब क्रिएशन है ना वो बढ़ गया है बाय 35% फ्रॉम द लास्ट ईयर का जो फर्स्ट हाफ था फॉर फिजिकल ईयर 2022, उसके कंपैरिजन में देखें तो 35% राइज हमें देखने को मिला फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएशन में इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 23 एज पर द डाटा रिलीज बाय EPFO। फिर बात करते हैं नेवी डे। नेवी डे आपका 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद आ जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये आपका 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। देन नेक्स्ट है डिजी यात्रा। डिजी यात्रा आपको याद रखना है, ये लॉन्च किया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन है। 3 एयरपोर्ट्स के लिए लॉन्च किया गया था इन द कंट्री, जो आपका न्यू दिल्ली में, आपका यूपी वाराणसी में एंड बेंगलोर कर्नाटका में। यहाँ पर याद रखना है इसको इनॉग्रेट कहाँ से किया गया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में ही है, और यहीं पर आपका फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो थे फ्रेंड्स हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स, यहाँ पे तो हो गई रिवीजन। अब आ जाते हैं जो आज के इम्पोर्टेंट टुडे के करंट अफेयर रहेंगे, और नोट्स ज़रूर बनाना है इनका। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुराग सिंह ठाकुर की। इनके द्वारा इंडिया का पहला ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया गया। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले ड्रोन्स की बात की जा रही है तो ड्रोन से शुरू करते हैं। पहला ड्रोन मेला कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट ड्रोन मेला ये कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। फिर ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर मैं बात करूँ बिगेस्ट ड्रोन मेला कहाँ पे हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था। फिर हम जानते हैं ड्रोन्स के इंपोर्ट पे बैन लगा रखा है, हम इंपोर्ट नहीं करा सकते। अगर मैं बात करूँ ड्रोन्स को हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ करने वाली वो पहली स्टेट कौन सी थी? वो उत्तराखंड थी। ड्रोन से रिलेटेड पॉलिसी को अप्रूव करने वाली पहली स्टेट कौन सी बनी थी? हिमाचल प्रदेश बनी थी। अब यहाँ पर आ रहा है कि पहला ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ पर है? ये चेन्नई तमिलनाडु में है, ये वर्चुअली होगा। और जैसे हम जानते हैं कभी रिसेंट में एक न्यूज़ और आई थी, रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि आने वाले 4-5 सालों में जो ड्रोन्स के पायलट होंगे, मतलब जो ड्रोन्स को ऑपरेट करेंगे, उनकी संख्या बढ़ने वाली है, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी निकलेंगी, क्योंकि ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए भी तो कोई व्यक्ति चाहिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, मतलब इन ड्रोन्स को ट्रेन किया जाएगा थ्रू दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे इन्होंने एक ऑपरेशन 777 ये एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, जहाँ पर एजुकेशन एंड डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा एफिशिएंसी ऑफ ड्रोन्स को, ताकि इसको एग्रीकल्चर यूज़ में लाया जा सके अक्रॉस 777 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ऑपरेशन 777 भी याद रखेंगे। और ये पहला इंडिया का पहला ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस एंड ड्रोन यात्रा कहाँ पर होगी? चेन्नई तमिलनाडु में, ये भी याद रखेंगे। इनॉग्रेट किसके द्वारा की जाएगी? अनुराग ठाकुर के द्वारा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, और न्यूयॉर्क में ही यूनाइटेड नेशन का भी हेडक्वार्टर है। तो अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो वेस्ट सेग्रीगेशन सेक्टर में वर्क करते हैं लोग, उनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि देखो सरकार तो आपकी स्कीम्स बना देती है, गवर्नमेंट तो लोगों के लिए स्कीम्स लॉन्च कर देती है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस वो लोग उन स्कीम्स को अवेल नहीं कर पाते हैं। अब सरकार ने कोई स्कीम बनाई, लेकिन वो लोग उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। जिनको अवेयरनेस हुई, जिनको पता लगा, उन्होंने तो यूज़ कर ली, लेकिन जिनको पता नहीं लगा वो तो
वेस्ट गई फिर उनके लिए। तो ऐसे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ऐसे लोगों को अपने राइट्स के बारे में बताने के लिए, ऐसे लोगों को बताने के लिए कि ये आपकी स्कीम्स है, सरकार ये आपकी मदद करती है, ऐसे मदद करती है, आपको ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी इस स्कीम को अवेल कराने के लिए, उन सब में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हेल्प करेगा ऐसे सेग्रीगेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन सेक्टर के वर्कर्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है WTO बैरोमीटर के हिसाब से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही समझिए इसको। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अभी एक डाटा रिलीज़ किया गया कि जो ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ है ना वो स्लो हो जाएगी इन 2023। ये तो मैं बहुत टाइम से बताते आ रहे हैं हम, आपको ये पता होना चाहिए। रीज़न क्या है कि यूक्रेन रशिया वॉर, हाई एनर्जी प्राइसेस, मॉनेटरी टाइटनिंग, ठीक, जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है, आपका इन्फ्लेशन जो आपका, आप कहने जा रहे हैं कि आपके रिसेशन भी आ सकता है 2023 में, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये डाटा रिलीज़ किया गया और बताया गया कि जो ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी इन 2023। फिर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे यहीं पर, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनर किया ताकि 3 मिलियन US$ प्रोवाइड किए जा सकें फॉर द प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऑफ अगरतला म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो अगरतला म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनके वहाँ के प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, अगरतला त्रिपुरा में वहाँ पे प्रोजेक्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देने के लिए ये $3 मिलियन का ग्रांट अप्रूव किया गया बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहीं पे अगर मैं MCD की बात करूं, दिल्ली MCD में किन की जीत हुई, कौन सी पार्टी की जीत हुई, वो है आम आदमी पार्टी की, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट था बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड BJP, लेकिन यहाँ पर BJP की जीत हुई क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं म्युनिसिपल की आपकी, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी की। तो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपकी दिल्ली की है। ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटी केयर प्लान। ये आपका एक इंश्योरेंस प्लान है, एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इस क्रिटी केयर प्लान में क्या होगा, जो 30 मेजर इलनेस होती है ना, जो 30 मेजर डिजीज़ होती हैं, उनके खिलाफ यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन पे किया जाएगा। और आप देखते हैं इंश्योरेंस में क्या होता है, जब आपको प्रोटेक्शन मिलता है, जब आप प्लान लेते हैं ना, तो आपको क्या होता है कि जैसे जैसे आप अपना इलाज कराइए और उसके बेसिस पे आप इंश्योरेंस क्लेम ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको अपफ्रंट पैसा दे दिया जाएगा, आपको लमसम मनी अपफ्रंट दे दिया जाएगा और आप उस पैसे को यूज़ करके आप अपने जो ट्रीटमेंट होते हैं, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होंगे, जो इलनेस होगी, उस पर अपने अमाउंट को स्पेंड कर सकेंगे। तो जो लमसम पेमेंट होगी ना वो पहले ही प्रोवाइड कर दी जाएगी फॉर दोज 30 क्रिटिकल इलनेस एंड मेजर डिजीज, जो कि आपकी इसके अंडर कवर की जाएंगी, जो कि है एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिक केयर प्लान के अंडर लॉन्च की जाएंगी। ठीक है, इवन इसके अंडर आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा अंडर सेक्शन 80D। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया की जो GDP फोरकास्ट है फॉर फिजिकल ईयर 23, वो पहले 7.5% प्रोजेक्ट की गई थी। फिर इस 7.5 से प्रोजेक्ट करने के बाद उन्होंने रिड्यूस कर दी इंडिया की GDP ग्रोथ रेट टू 6.5%, और अब फिर से इन्होंने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट बढ़ा दिया टू 6.9%। तो अगर अब डाटा पूछा जाए, आपका कल एग्जाम हो जाए, तो लेटेस्ट डाटा जो है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है वो है 6.9% की। यहीं पे अगर मैं फिच रेटिंग्स की बात करूं तो उनकी जो प्रोजेक्शन है वो है 7% की। मूडीज़ की मैं बात करूं तो मूडीज़ ने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 7.7% से रिड्यूस करके कितनी कर दी थी, 7%। यहीं पर RBI की भी मैं बात करूं तो उनकी भी प्रोजेक्शन क्या है, 7% की। नेक्स्ट बात करेंगे वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट। इन दोनों ने अभी NSIC के साथ एक टाइप करा है, और NSIC क्या है आपका, NSIC रहेगा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तो फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट ने मिलकर NSIC के साथ टाइप करा कि जो MSMEs हैं हम वहाँ पर बढ़ावा देंगे, हम उन लोगों को हेल्प करेंगे कि अपने बिजनेस को बिल्ड कर सके ऑल अक्रॉस इंडिया। यहीं पर MOU साइन किया गया था वॉलमार्ट वृद्धि समिट सेलर के साथ, जो कि एक इवेंट था जो कि माइलस्टोन मार्क करता है कि 20,000 MSMEs को उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी दी है। मतलब वॉलमार्ट ने अंडर दिस वृद्धि सेलर समिट
अराउंड 20,000 से भी ज़्यादा MSMEs को अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है और उनको बताया है कि आपको कैसे ग्रो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों पे वर्क करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऑलराइट, ये आपका प्रोग्राम रहेगा जो था, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलमार्ट वृद्धि सेलर समिट। इसके अंडर 20,000 MSMEs को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई। फिर यहीं पे याद रखेंगे वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट ने पार्टनर किया किसके साथ, टू ट्रेन MSMEs, टू हेल्प द MSME सेक्टर, वो रहेगा आपका NSIC। ठीक है, चलिए फिर अगर मैं NSIC की बात करूं जो कि है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, इनके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, वो हैं गौरांग दीक्षित। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है और 1955 में ये इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे वो 4 इंडियन वीमेन कौन सी हैं जो कि BBC की 100 वीमेन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीमेन की लिस्ट में है 2022 की। तो 4 वीमेन का नाम याद रखेंगे, प्रियंका चोपड़ा, श्रीषा बादला, गीतांजलि श्री एंड स्नेहा ज्वाले। तो ये 4 वो वीमेन है, पहली हैं आपकी प्रियंका चोपड़ा, दूसरी श्रीषा बांदला, तीसरी गीतांजलि श्री और चौथी स्नेहा ज्वाले। ये वो वीमेन है, 4 वीमेन जो कि BBC की 100 वीमेन लिस्ट 2022 में आई और जो कि इंडियन वीमेन, 4 इंडियन वीमेन जो कि BBC की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट ऑफ 2022 में इनको लिस्ट किया गया। फिर इसके अलावा याद रखेंगे जो ये लिस्ट थी आपकी, ये BBC की फुल फॉर्म क्या रहेगी, पहले तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रहेगी। ठीक, फिर इस लिस्ट की भी हम बात करें तो ये जो लिस्ट है ये सेलिब्रेट करती है अचीवमेंट्स ऑफ वीमेन इंटरनेशनली फ्रॉम ग्रास रूट वॉलंटियर्स टू ग्लोबल लीडर्स। ऑलराइट, और इसी की बात करें तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जो ये BBC के जो 2021 के लिस्ट थे ना, उनके जो वीमेन लॉरेट्स थे उन्होंने नॉमिनेट किया एंड उन्होंने इस लिस्ट को फ्रेम किया है। ऑलराइट, और एक चीज़ और, ये जो 2022 की हम बात कर रहे हैं जो लिस्ट रिलीज़ की गई, ये 10th सीजन है ऑफ दिस 100 वीमेन लिस्ट। अगर मैं BBC की ही बात करूं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर लंदन रहेगा इन यूनाइटेड किंगडम एंड चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पे, रिचर्ड शार्प। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिडनी मैकलॉहिन की बात करेंगे। ये आपके किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ये आपकी हर्डलर है, ठीक है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करे हैं इन्होंने और 3 इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, इन्होंने 3 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं 2022 में। और अगर मैं बात करूँ आर्मंड डुप्लेंटिस की, ये आपके पोल वॉल्टर हैं और इन्होंने भी आपके 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड नए बनाए हैं, और इन्होंने भी 3 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं 2022 में। और इन्हीं वजह से, इन दोनों की अचीवमेंट की वजह से 2022 में इनको वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया। मैन की बात करूं तो आर्मंड डुप्लेंटिस मैन एथलीट ऑफ द ईयर, और सिडनी मैकलॉहिन की बात करूं तो ये वीमेन एथलीट ऑफ द ईयर 2022 रहेंगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिस अर्थ 2022 की। साउथ कोरिया से पहली बार ऐसा हुआ है आफ्टर 20 ईयर्स की साउथ कोरिया से किसी महिला को मिस अर्थ 2022 के टाइटल से सम्मानित करा गया। और इस बार जिन्हें सम्मानित किया गया वो है मीना सू चॉय। ये 24 साल की हैं, ठीक है, और इनको मिस अर्थ क्राउन किया गया 2022 के लिए। ये कहाँ पर हुआ था, फिलीपींस में हुआ था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि मीना सू चॉय ने किनको सक्सीड किया टू बिकम द मिस अर्थ 2022, तो जो मिस अर्थ 2021 रही होंगी उनको सक्सीड किया, और वो कौन थी, डेस्टिनी वेजनर। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेस्टिनी वेजनर को इन्होंने सक्सीड किया टू बिकम द मिस अर्थ ऑफ 2022, और 2022 में ये 22nd एडिशन था ऑफ मिस अर्थ पेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट की। अगर आपको याद हो इससे पहले तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऋषभ पंत को अपना स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर बनाया था ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके इन द स्टेट।
फिर अक्षय कुमार को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर और उसके बाद वापस से ऋषभ पंत को बनाया गया था। ये रीज़न क्या होता है स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर या फिर स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए, ताकि हम उस व्यक्ति से एसोसिएट कर सकें और उस व्यक्ति की मदद से हम स्टेट में ग्रोथ ला सकें या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे वर्क कर सकें। तो जैसे अगर अभी हम बात करें, उत्तराखंड ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा है। प्रसून जोशी की हम बात करें तो ये काफ़ी फेमस लिरिसिस्ट है, राइटर हैं, ये एक आपके आर्टिस्ट हैं, ठीक है, और ये नेटिव हैं उत्तराखंड स्टेट के, मतलब ये उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं और अभी करंटली ये सर्व कर रहे हैं एज द चेयरमैन ऑफ सेंसर बोर्ड, जो कि है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ लिखी हैं जैसे भाग मिल्खा भाग, ठीक है, फिर इसके बाद रंग दे बसंती, फना, तारे ज़मीन पर, ये सारी बुक्स सारी मूवीज़ इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, इनको जो 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड होता है वो कौन सा होता है, पद्माश्री, उससे भी सम्मानित किया गया था, 2015 में सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। इसी के साथ साथ इनको यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बाय द ईयर 2006, ठीक है, और बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है इनको 2008 में। तो ये है प्रसून जोशी, याद रखेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड स्टेट ने अभी रिसेंटली, जैसे हमने देखा, प्रसून जोशी को तो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, लेकिन इन्होंने अभी एक एग्रीमेंट भी साइन किया है मैकेंजी कंपनी के साथ, ताकि जो ये अपनी जीएसडीपी, जैसे आपकी कंट्री की जीडीपी होती है, ठीक है, वैसे ही आपका स्टेट का जीएसडीपी होता है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वो कंट्री का हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। तो अभी अपनी स्टेट की जीएसडीपी को डबल करने के लिए बाय द ईयर 2027 उत्तराखंड ने मैकेंजी के साथ अभी एक टाई अप करा है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और ये टाई अप किया गया अंडर सशक्त उत्तराखंड मिशन फॉर अचीविंग द टारगेट ऑफ डबलिंग इट्स जीएसडीपी बाय 2027, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। इवन अगर आपको याद हो, एलएनटी के साथ भी एक स्टेट ने टाइप किया, वो था यूपी, ताकि वो अपनी जीडीपी को $1 ट्रिलियन कर सके, अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की बना सके। यूपी ने ये टाइप किया था। सिमिलरली उत्तराखंड ने टाइप किया मैकेंजी के साथ, ताकि वो अपनी जीएसडीपी को डबल कर सकें बाय द ईयर 2027। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो की। इसरो ने अभी एक एमओयू साइन किया व्योम स्पेस के साथ, ताकि जो प्राइवेट स्पेस कैप्सूल्स हैं जिससे आप ह्यूमंस को, कार्गोस को स्पेस में ले जा सकते हैं, उसको डेवलप किया जा सके। आई रिपीट, बात की जाएगी इसरो की। इसरो ने किन के साथ एक एमओयू साइन किया, वो रहेगा व्योम स्पेस। और याद रखेंगे व्योम स्पेस ये मिलके क्या करेंगे डेवलप, ये एक स्पेस कार्गो कैप्सूल प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, जिससे आप ह्यूमंस को एज वेल एज आप कार्गो को स्पेस में ले जाया जा सके। दिस एमओयू हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको इनस्पेस बोला जाता है, जो कि इंडिया की नोडल स्पेस ऑथराइजेशन बॉडी है एंड एन ऑटोनोमस एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे। ऑल्सो याद रखेंगे, एक कैप्सूल एक क्या होता है, एक स्पेस मिशन होता है बेसिकली, जहाँ पे आप एस्ट्रोनॉट्स को ले जाते हैं या फिर आप अपने कार्गो या जो कि आपका प्रोडक्ट्स गुड्स होते हैं उसको ले जाते हैं। सिमिलरली अगर आप याद रखें, अगर मैं अभी चाइना की बात करूं, चाइना का अपना खुद का टिएंगोंग स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है, ठीक, और यहीं पर अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को उन्होंने स्पेस में भेजा था 6 महीने के लिए, जो कि अभी रिसेंट में वो वापस आए हैं। यहाँ पर ये स्पेस में रिसर्च कर रहे थे, वेरियस ऑब्जेक्ट किसी अलग अलग रिसर्च कर रहे थे, जो कि अब ये 6 महीने के बाद वापस अपने लैंड करे हैं इन अर्थ, ठीक। अगर अब मैं व्योम स्पेस की बात करूं, व्योम स्पेस की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये आपकी गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा, और इनके फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, मनीष कुकरेती। मनीष कुकरेती यहाँ पे फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे व्योम स्पेस के। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 77th ग्रैंड मास्टर चेस से रिलेटेड कौन बने हैं, वो है आदित्य मित्तल। 16 साल के हैं ये आदित्य मित्तल, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और ये 77 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं ड्यूरिंग
द थर्ड एडिशन ऑफ एल लॉब्रेगेट ओपन चेस टूर्नामेंट जो कि स्पेन में हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और अगर मैं फाइड की बात करूं, फाइड के डेप्टी प्रेसिडेंट कौन बने हुए हैं, वो है विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद 1988 में इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। और अभी 77th ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन बने हैं, वो है आदित्य मित्तल। 16 साल के हैं, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट वाई के अलगा जी का, जिनका रिसेंटली निधन हो गया। अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1939 में। अभी 83 की एज में इनका अहमदाबाद गुजरात में निधन हो गया है। ठीक, ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे इनटू द फील्ड ऑफ इकोनॉमिस्ट। ये एक फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं जेएनयू यूनिवर्सिटी के, जो कि दिल्ली में है। इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, आईआईएम कैलकाटा जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलकाटा, वहाँ पे भी ये पढ़ा चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर में पढ़ा चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ये भी पढ़ा चुके हैं। ठीक, और इसी के साथ साथ याद रखेंगे 2006 से लेके 2012 तक ही है सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के। ऑलराइट, तो वाई के अलका जी का, जो कि काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट था, इनका निधन हो गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 7 दिसंबर को हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व करते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन इन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। यहाँ पे जो थीम रहेगी सिविल एविएशन डे की, वो क्या है, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। आई रिपीट, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ये आपकी थीम रहेगी सिविल एविएशन डे की 2022 की। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। 7 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर द मार्टर्स एंड द मैन जो कि आर्म फोर्स में थे, जिन्होंने अपना शिद्दत से लड़ी, ब्रेवरी से लड़ाई लड़ी टू सेफगार्ड द कंट्रीज ऑनर। और जो ये फ्लैग डे है, ये एम्फेसाइजेज द केयरिंग फॉर द वॉर डिसेबल्ड सोल्जर, जो वीर नारीज हैं, एंड द फैमिलीज ऑफ द मार्टिर्स हु डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। इसी को याद रखते हुए एक और चीज़ याद रखेंगे, 28 अगस्त को 1949 को एक कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी बाय देन डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह, जिन्होंने डिसाइड किया कि हर साल 7 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करेंगे एज द फ्लैग डे। और इसी से याद रखेंगे जो पहला फ्लैग डे ऑब्जर्व कब किया गया था, 1949, 7 दिसंबर 1949 को फर्स्ट आर्म फोर्सेस फ्लैग डे ऑब्जर्व करा गया था। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी कौन है, वो रहेंगे जनरल मनोज पांडे जी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं, इससे पहले एक और याद रखेंगे रेड प्लैनेट डे। रेड प्लैनेट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, आपका 28 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है रेड प्लैनेट डे। फिर इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है, ये आपकी स्टेट न्यूज़ है। यहाँ पर बताया गया कि मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 अभी कंडक्ट करी गई भुवनेश्वर में। ये आपका थर्ड एडिशन था मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का। अगर मैं पहले एडिशन की बात करूं तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था, एंड जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है मेक इन ओडिशा, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया है कि हम प्रोडक्ट्स को ओडिशा में बनाएं, इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग या इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग हम उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें टू डिफरेंट स्टेट्स या इवन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए ये आपका एक बाइनियल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाता है ताकि वो लोग आके भुवनेश्वर उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, और ये जो 2022 में बेसिक एम था ना इस कॉन्क्लेव का, ये था कि फिक्की के साथ टाई अप करने के लिए। यहीं पे अगर मैं पहले एडिशन की बात करूँ, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2016 में हुई थी, और 2.03 ट्रिलियन रुपीज़ को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पे जनरेट करने की बात की गई। फिर दूसरी इवेंट जो हुई थी आपकी हुई थी 2018 में, और यहाँ पर कुछ 4 ट्रिलियन डॉलर्स को जनरेट करने की बात की गई थी। ठीक, और अब हो रही है 2022 में, जो कि थर्ड इवेंट रहेगा। और बोला जा रहा है कि इस थर्ड इवेंट के बाद कुछ 10 लाख जॉब्स को में लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये इवेंट हुआ कहाँ था, मेक इन इंडिया और मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव, ये आपका भुवनेश्वर में हुआ था, ओडिशा में हुआ था। 30 नवंबर से लेके 4 दिसंबर के बीच में ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। अनुराग सिंह ठाकुर ने इनॉग्रेट किया ड्रोन यात्रा इन चेन्नई। मेघालय गवर्नमेंट ने अनवेल किया एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने वेस्ट सेग्रीगेशन वर्कर को एक्सेस दिया टू गवर्नमेंट स्कीम्स, उनको अवेयरनेस क्रिएट कराई। देन ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ टू स्लो डाउन इन 2023 एज पर WTO बैरोमीटर। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पार्टनर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टू प्रोवाइड $3 मिलियन PRF फैसिलिटी। AFLI ने लॉन्च किया एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिक केयर प्लान फॉर 30 क्रिटिकल इलनेसेस, और लमसम अमाउंट ये इन हैंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा पहले ही। वर्ल्ड बैंक ने अपग्रेड किया इंडिया की GDP ग्रोथ फोरकास्ट को फॉर फिजिकल ईयर 23 टू 6.9% एज पर फिच रिटेन्स इट एट 7%। मूडीज़ की भी 7% है, RBI की भी 7% है। देन वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट ने पार्टनर किया NSIC के साथ टू सपोर्ट MSMEs। प्रियंका चोपड़ा एंड 3 अदर इंडियंस फीचर्ड इन द BBC's 100 वीमेन लिस्ट ऑफ 2022, और ये 10th एडिशन था इस लिस्ट का। साउथ कोरिया की मीना शू चोई, इनको क्राउन किया गया एज मिस अर्थ 2022। उत्तराखंड ने अपॉइंट किया पद्मश्री अवार्डी प्रसून जोशी को एज देयर स्टेट ब्रांड एम्बेसडर, और ये नेटिव ही हैं यहाँ के, याद रखेंगे। देन इसरो ने एक MOU साइन किया व्योम स्पेस के साथ टू बिल्ड प्राइवेट स्पेस कैप्सूल, ताकि ह्यूमंस को एंड कार्गो को स्पेस में ले जाया जा सके। आदित्य मित्तल ये 77 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया के। 16 साल के हैं ये और मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एमिनेंट इकोलॉजिस्ट YK अलगा, इनका रिसेंटली निधन हो गया अहमदाबाद गुजरात में। सीनियर यक्षगान आर्टिस्ट एंड फॉर्मर MLA कुंबले सुंदर राव जी हैज़ पास्ड अवे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर को। रेड प्लैनेट डे 28 नवंबर को। और बात करें फिर मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव की, ये 3rd एडिशन हुआ था। पहली एडिशन 2016 में, फिर 2018 में, और अब 2022 में ऑब्जर्व किया गया। भुवनेश्वर ओडिशा में ऑब्जर्व किया गया था। और यहाँ पे बात की गई फिक्की को ऑन बोर्ड लेने की, और यहाँ पे कुछ 10 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेक्टर में या फिर फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर में डेवलप करने की बात की गई। और ये ऑब्जर्व किया गया था 30 दिसंबर से लेके 30 नवंबर से लेके 4 दिसंबर के बीच में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पे। पहला है, वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया $250 मिलियन की फाइनेंसिंग टू विच कंट्री टू स्ट्रेंथन द एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। फिर विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया आफ्टर चाइना एंड US एज ऑफ 2022। थर्ड, विच कंट्री अबॉलिश्ड मोर्टेलिटी पुलिस नोन एज द गश्ते अरशद और गाइडेंस पेट्रोल। Fourth, Oliver Giroud, which was seen in the news recently, is a famous football player from which country? Fifth आ जाता है, which country is the host of the Asia and the Pacific Regional Meeting of the International Labour Organization? इसी के साथ साथ बता दो 12th डायरेक्टर जनरल ILO के क्या नाम है, उनका नाम बता दो साथ ही साथ। एंड फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यूज़ है। वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, वीकली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करते हैं, और मंथली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। ये वीडियोस हमारी डेली डलती हैं। इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं, जैसे आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इंपॉर्टेंट डेज, ये टॉपिक्स। इसके अलावा काफ़ी और सारे टॉपिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप हमारी कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे भी जाके क्विज को अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देने वाली है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.